بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد کے قریب سے گزرا۔ خالد نے چلا کر اسے رکنے کو کہا لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ رافع نے غضبناک آواز میں کہا، ابن ولید تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرتناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد کے قریب سے گزرا۔ خالد چلائے، رک جا اے جان پر کھیلنے والے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب میں اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ خالد نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا۔ دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ ایک محافظ نے اسے کہا، کیا تو نے سنا نہیں سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے؟ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ دوسرے محافظ نے کہا، سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑی لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ خالد نے کہا، آنکھوں سے تو نو عمر لڑکا لگتا ہے۔ تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے۔ تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون؟ سوار نے کہا، تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ خالد نے اس سوار کی بات سن کر کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ اس نے جواب دیا، میں الازور کی بیٹی خولا ہوں۔ خالد نے کہا، زرار بن الازور کی بہن؟ خولا بنت الازور نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولا جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خاوندوں بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خولا اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ رومیوں نے اس کے بھائی کو قید میں لے لیا ہے تو اس نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کی مضافات میں تھے۔ خولا وہاں سے خالد کے 4000
3000 मुजाहिदीन के पीछे पीछे चल पड़ी थी। जूं ही रूमी और मुसलमान आमने सामने आए, ख्वाला ने घोड़े को एड़ी लगा दी और रूमियों पर टूट पड़ी। ख्वाला ने ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसने मुजाहिदीन इस्लाम को नया हौसला और नया वलवला दिया। अब मुसलमानों की नफरी भी ज्यादा हो गई थी और क़यादत खालिद की थी। खालिद के साथ जो 4000 सवार गए थे वो ताज़ा दम थे। इसके अलावा पूरा लश्कर ज़रार के कैदी हो जाने पर आग बगोला था। रूमियों के लिए इस हमले को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने जमकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन खालिद की चालों और उनके लश्कर के गैज़ व गज़ब के सामने रूमी ठहर ना सके। रूमियों की फौज चूंकि एक मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फौज थी, इसलिए उसकी पसपाई भी मुनज़्ज़म थी। उसे पसपा करने में खालिद को बहुत जोर लगाना पड़ा। रूमियों की पसपाई से ये मकसद तो पूरा हो गया कि दमिश्क के दिफाई दस्ते कुमक और रसद से महरूम रहे। रूमियों का ये कमाल था कि वो जो रसद साथ लाए थे वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। अब दूसरा मकसद सामने था और वो ज़रार की रिहाई। इस मकसद के लिए खालिद ने रूमियों का ताक़ुब जारी रखा। रूमी और तेजी से पसपा होने लगे। खालिद ने हर दाव खेला मगर रूमियों ने कोई दाव कामयाब ना होने दिया। खालिद ने ताक़ुब की रफ्तार कम ना की। उनकी कोशिश ये थी कि रूमी कहीं रुकने ना पाए। खालिद खुद पीछे रह गए। ये बहन का इशार था जो अल्लाह ने कबूल किया और ये ज़रार का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जो अल्लाह को अच्छा लगा। ज़रार की सरफरोशी को अल्लाह ने नजरअंदाज ना किया। पता चला कि ज़रार रूमियों की कैद में जिंदा हैं। ये खबर देने वाले 2 अरबी थे जो उस इलाके में आकर आबाद हुए थे। खालिद के 2-4 सवार एक छोटी सी एक बस्ती के करीब से गुजरते रुक गए। वो पानी पीना चाहते थे। बस्ती के लोग इस ख्याल से खौफजदा हो गए कि ये फातेह फौज के आदमी हैं, इसलिए ये लूट मार करेंगे और जवान लड़कियों पर हाथ डालेंगे। आबादी में हड़बोंग सी मच गई। 2 आदमी मुसलमान सवारों के पास आए और उनसे कहा, हम भी अरबी बाशिंदे हैं। हम मुसलमान तो नहीं फिर भी अरब की मिट्टी का वास्ता देकर कहते हैं कि हमारी खातिर इस बस्ती पर हाथ ना उठाएं। एक मुसलमान सवार ने कहा, तुम ना कहते तो भी हम इस बस्ती की तरफ देखना गवारा ना करते। इन लोगों से कहो कि हमसे ना डरें, हम तुम सब के महाफिज हैं। हम पानी पी कर चले जाएंगे। दोनों अरबों ने बस्ती के लोगों से कहा कि वो डरे नहीं और अपने घरों में रहें। उन अरबों ने सवारों और उनके घोड़ों को पानी पिलाया। इस दौरान वो सवारों के साथ बातें भी करते रहे। बातों बातों में उन अरबों ने सवारों को बताया कि एक घोड़े पर रूमियों ने एक आदमी को बांध रखा था। उसका सर नंगा था और उसकी कमीज भी नहीं थी और उसके एक बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थीं। उसे उन्होंने यहाँ पानी पिलाने के लिए रोका था। एक अरब ने बताया, वो तुम्हारा साथी मालूम होता था। मुसलमान सवारों को शक ना रहा, ये ही ज़रार थे। सवारों ने उन अरबों से मजीद मालूमात ली। ज़रार के साथ तकरीबन 100 रूमी थे। वो रूमी लश्कर की पसपाई से बहुत पहले वहां से गुजरे थे और हमस की तरफ जा रहे थे। मुसलमान सवारों ने अपने एक साथी से कहा कि वो पीछे जाकर सिपहसालार को ज़रार बिनुल अज़वर के मुतालिक ये इतला दे। खालिद ने ये खबर सुनकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रार जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। उन्होंने उसे कत्ल करना होता तो कर चुके होते। वो उसे अपने बादशाह के पास ले जा रहे हैं। इब्ने अमीरा को बुलाओ। राफे बिन अमीरा आए तो खालिद ने उन्हें ज़रार के मुतालिक जो इतला मिली थी पूरी सुनाकर कहा कि वो 100 सवार चुन लें जो जान पर खेलने वाले शाहसवार हों। उन्हें साथ लेकर हमस की तरफ एक ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो रास्ता ना हो। मतलब ये था कि रास्ता छोटा करके हमस की तरफ जाएं और उन 100 रूमियों को रोककर इब्नुल अज़वर को रिहा कराएं। राफे जब सवारों का इंतखाब कर रहे थे तो ज़रार की बहन
बहन को पता चल गया कि राफे जरार को आजाद कराने जा रहे हैं। वो राफे के पास दौड़ी गईं और कहने लगी कि वो भी उनके साथ जाएंगी। राफे ने कहा, नहीं बिंतुल अजवर, खुदा की कसम जो काम हमारा है वो हम एक औरत से नहीं कराएंगे। तुझे तेरा भाई चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम भी वापस नहीं आएंगे। अगर सिपासालार से इजाजत ले लूं। इब्ने वलीद तुझे इजाजत नहीं देगा अल अजवर की बेटी। ख्वाला मायूस हो गई। राफे चुने हुए 100 सवारों के साथ बड़ी उजलत में रवाना हो गए। उन्होंने हमस की तरफ जाने वाले रास्ते का अंदाजा कर लिया था। वो उस रास्ते से दूर दूर तेज रफ्तारी से घोड़े दौड़ाते गए। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि एक तरफ से एक घोड़ा सर पर दौड़ता आ रहा था। वो रूमी नहीं हो सकता था। रूमी होता तो अकेला ना होता। वो खालिद का कासिद हो सकता था। कोई नया हुक्म लाया होगा। वो करीब आया तो उसका सब्ज इमामा और चेहरे पर कपड़े का निकाब नजर आया। सवार ने ललकार कर कहा, इब्ने अमीरा, अपने भाई को आजाद कराने के लिए मैं आ गई हूँ। राफे ने पूछा, क्या सिपा सालार ने तुझे इजाजत दे दी है? ख्वाला बिंतुल अजवर ने कहा, अपने भाई को कैद से छुड़ाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अगर तू मुझे अपने सवारों में शामिल होने नहीं देगा तो मैं अकेली आगे जाऊंगी। खुदा की कसम बिंतुल अजवर, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आ हमारे साथ चल। ये जवान साल औरत साथ चल पड़ी। 100 रूमी सवार जरार बिनुल अजवर को घोड़े पर इस हालत में बिठाए ले जा रहे थे कि उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और पांव इस तरह बंधे हुए थे कि घोड़े के पीठ के नीचे से रस्सी गुजार कर दोनों टखनों से बंधी हुई थी। रूमी उन पर बत्तियां कसते और उनका मजाक उड़ाते जा रहे थे और जरार चुपचाप सुनते जा रहे थे। एक जगह रास्ता नशेब में चला जाता था। उसके दाएं बाएं इलाका खड्डों का था। जब रूमी उस नशेब में से गुजर रहे थे तो अचानक दाएं बाएं, आगे और पीछे से राफे के सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया। रूमियों के लिए ये हमला गैर मुतवक्का था। वो इस तरह जा रहे थे जैसे मेले पर जा रहे हों। जरार की बहन ख्वाला ने अपने भाई को देखा तो उसने रूमियों पर इस तरह हमले शुरू कर दिए जिस तरह वो पूरी रूमी फौज पर कर चुकी थी। राफे भी ऐसे ही जोश में थे। उनके सवार हजारों में से चुने हुए थे। उन्होंने रूमियों का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि उनमें से जो मरे नहीं या जख्मी नहीं हुए थे वो भाग उठे। खतरा ये था कि रूमी जरार को कत्ल कर देंगे। उनकी बहन तलवार और बुर्ची चलाती जरार तक पहुंच गई। रूमियों ने उनकी ये कोशिश कामयाब ना होने दी, लेकिन राफे ने ऐसा हल्ला बोला कि रूमी सवार बिखर गए और फिर फर्दन फर्दन भाग उठे। सबसे पहले जरार ने राफे से हाथ मिलाया और जब बहन भाई मिले तो वो मंजर रकत अंगेज भी था और वलवला अंगेज भी। बहन अपने भाई के जख्म देखने को बेताब थी। बाज मौर्रिखों ने ख्वाला के ये अल्फाज लिखे हैं, मेरे अजीज भाई, मेरे दिल की तपश देख किस तरह तेरे फिराक में जल रहा है। बहन ने बेताबी से कहा, अपने जख्म दिखाओ जरार। जरार ने बहन से कहा, मत देखो ख्वाला, और ये जख्म मुझे भी ना देखने दो। ये जख्म देखने का वक्त नहीं। जरार ने राफे और उनके सवारों से कहा, चलो दोस्तों, रूमी कहाँ हैं? दमश्क के मुहासरे का क्या बना? उधर रूमी लड़ भी रहे थे और पसपा भी हो रहे थे। ये उनकी तंजीम भी थी और जुर्रत भी कि वो भाग नहीं रहे थे। एक ऐसी जगह आ गई जिसके दोनों तरफ चट्टाने और कुछ बुलंद टीकरियां थीं। रूमी लश्कर को सुकड़ना पड़ा। खालिद ने अपने दोनों पहलुओं के सालारों से कहा कि वो चट्टानों की दूसरी अतराफ में निकल जाएं और सर
सरपट रफ्तार से रूमियों के अकब में चले जाएं। रूमी ना देख सके कि चट्टानों के पीछे से उन पर क्या आफत टूटने वाली है। खालिद ने ताकुब की रफ्तार कम कर दी। रूमी समझे होंगे कि मुसलमान थक गए हैं। उन्होंने पसपाई रोक ली। खालिद ने अपने दस्तों को रोक लिया। अचानक अकब से रूमियों पर कयामत टूट पड़ी। सामने से खालिद ने शदीद हमला कर दिया। रूमियों की ये हालत हो गई कि वो घोड़ों को चट्टानों और टीकरियों पर चढ़ा ले गए और दूसरी तरफ उतर कर भागने लगे। तवक्को ये थी कि रूमी रसद वगैरह का जो जखीरा साथ ला रहे थे वो मुसलमानों के हाथ आ जाएगा, लेकिन रूमियों ने घोड़ा गाड़ियों और ऊंटों को पहले ही हमस रवाना कर दिया था। हमस की तरफ जाने वाली राह गुजर पर रूमियों की लाशें बिखरी हुई थीं। जख्मी तड़प और कुर्रा रहे थे और उनके घोड़े इधर उधर आवारा फिर रहे थे। मुजाहिदीन ने हुक्म मिलते ही अपने साथियों की लाशें और जख्मियों को उठाना, जख्मी और मरे हुए रूमियों के हथियारों को इकट्ठा और उनके घोड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। खालिद ने कहा, काश मेरे पीछे दमश्क ना होता, मैं दुश्मन के एक आदमी को भी दमश्क तक ना पहुंचने देता। खालिद ने ताकुब तर्क कर दिया, लेकिन इस खतरे के पेश नजर के रूमी कहीं इकट्ठे या हमस से कुमक मंगवा कर वापिस ना आ जाएं, अपने एक सालार सिमत बिनुल अस्वद को बुलाया और उसे कहा, 1000 सवार अपने साथ लो और रूमियों के पीछे जाओ। उन्हें कहीं इकट्ठा ना होने देना, जंगी कैदी नहीं लेना। जो सामने आए उसे खत्म करो, फौरन रवाना हो जाओ। वलीद के बेटे, खालिद को किसी की पुकार सुनाई दी। खालिद ने जरार को आते देख कर नारा लगाया, वो आ गया मेरा नंगा जंगजू। जरार को अपने जख्मों की परवाह नहीं थी। वो घोड़े से कूद कर उतरे। खालिद भी कूद कर उतरे और तारीख इस्लाम के 2 अजीम मुजाहिद एक दूसरे के बाजुओं में जकड़ गए। ख्वाला घोड़े पर सवार थी। उसका चेहरा निकाब में था, सिर्फ आंखें नजर आती थी जिनकी चमक और ज्यादा रोशन हो गई थी। खालिद ने कहा, खुदा की कसम इब्नुल अस्वर, तेरी बहन ने तेरी खातिर मेरा भी मुंह फेर दिया था। इस बहन पर अल्लाह की रहमत हो। जरार ने कहा, तू मुझे बता मैं क्या करूं? क्या तू महसूस नहीं कर रहा कि तुझे आराम करना चाहिए? पहले जरा के पास जा और उसे अपने जख्म दिखा। जरार बिनुल अस्वर जरा के पास तो चले गए, लेकिन सिर्फ पट्टियां बंधवा कर वापिस आ गए। सालार समत बिनुल अस्वद रूमियों के ताकुब में गए। रूमी बुरी तरह भागे जा रहे थे। उनकी आधी नफरी तो लड़ाई और पसपाई में खत्म हो गई थी और बाकी निस्फ बिखर गई थी। सिमत जब हमस के करीब पहुंचे तो देखा कि रूमी हमस के किले में दाखिल होने जा रहे हैं। उस दौर में हमस एक किला बंद कस्बा हुआ करता था। समत वहां जाकर रुक गए। उन्हें मालूम नहीं था कि किले के अंदर कितनी फौज है। फिर भी उन्होंने अपने 1000 सवारों को किले के इर्द गिर्द इस अंदाज से दौड़ाया जैसे वो मुहासरा करना या किले पर हमला करना चाहते हों। किले का दरवाजा खुला और 3-4 आदमी जो फौजी नहीं थे बाहर आए। वो रूमी नहीं मकामी बाशिंदे थे। सालार सिमत बिनुल अस्वद ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों आए हो? एक ने कहा, अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। रूमी मजीद लड़ाई नहीं चाहते। क्या तुम्हारा शहंशाह हरकुल भी मजीद लड़ाई नहीं चाहता? हमस के एक शहरी ने कहा, हम शहंशाह रूम की तर्जुमानी नहीं कर सकते। हम ये पैगाम लाए हैं कि हमस वाले नहीं लड़ना चाहते। आप जिस कदर सामान खुर्दनोश चाहते हैं हमसे ले लें। आप जितने दिन भी यहाँ कयाम करना चाहते हैं करें। आपकी फौज और घोड़ों को खुराक हम मुहैया करेंगे। किसी भी तारीख में नहीं लिखा कि सालार सिमत ने हमस में रूमियों से सुलह की क्या शराइत मनवाई थी। वो वापिस आ गए। खालिद अपने लश्कर के साथ दमश्क जा चुके थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि खालिद जब दमश्क पहुंचे तो शहर के अंदर मायूसी और खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। शहर वालों को पहले ये इतला मिली थी कि अंताकिया
से कुमक और रसद आ रही है। अब उन्हें इत्ला मिली कि कुमक को मुसलमानों ने रास्ते में ख़त्म कर दिया है। दमिश्क में रूमी सालार तोअम्मा था जो शहंशाह हरकुल का दामाद था। चंद एक शहरी वफ़ की सूरत में तोअम्मा के पास गए। एक शहरी ने कहा, क्या आपको किसी ने बताया है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं? तोअम्मा ने कहा, क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ये बुज़दिली है? हमने अभी मुहासरा तोड़ने की कार्रवाई की ही नहीं। क्या तुम लोग मुझे ये मशवरा देने आए हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल दूं? वफ्द के एक और आदमी ने कहा, हम सालार मुअज्जम को शहर की सूरत हाल बताने आए हैं। शहर के लोग ये सुनकर हरासा हैं कि जिस फौज ने मुहासरा कर रखा है और हमारी कुमक को भी खत्म कर दिया है वो इस शहर में भी दाखिल हो जाएगी।